সকাল 8টা থেকে ভ্যাংরা জিপে নিয়েছে আমাদেরকে। আমাকে একটু কথা বলতে রে, আমি করাচ্ছি, তোরা এইটা করিস না, এইটা করিস না, আমি বারবার বার করছি, এটা করিস না। যা করার আমি করব। সকাল 8টা থেকে চিল্লে কি আপনি আজকে কি করেন? তুই একটা আমার কথা শোনো, চিৎকার করো। তুমি এখানটা আজকে কি করবে? তোমার কি দরকার তুমি সেটা বলবো আমাকে। যেটা দরকার আছে সেটা করে দাও, সেটা বলবে। আমি আছি তো, আমি লেখা দিচ্ছি। সকাল থেকে দাঁড়িয়েছি, আমি আছি, আমি আছি তো। তোমাদের আমার কথা কি করবে বলো? আমি বড়বাবু তো, কে আছে? এসছি তো, আমি তাহলে কি করতে চলে এসছি তো। দাঁড়া, আমার কথাটা শোন, আমি করাচ্ছি, তোরা এইটা করিস না। আগে ডেকে নে, আমি আছি তো, আমি করাচ্ছি। ঘটনা এখানে হয়েছিল সকালবেলায় উনি এসেছিলেন ডিউটিতে, এসে পরে এখানে যেমন ডিউটি করে সকালবেলায় সেরকম ডিউটি ওয়ার্কসে ছিলেন। কোনো কারণে হয়তো ভিতরে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওর ওপর, শরীর দিয়ে কোনো গাড়ি ফাড়ি বা কোনো কিছু চলে যায়, যেটা আমরা শুনেছি ডাম্পার ফাম্পার, আমরা তো ছিলাম না প্রেজেন্টে। এবার ঘটনা হয়ে গেছে যে ও এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার পর ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হসপিটালে, দুর্গাপুর কোনো হসপিটালে, যত সম্ভব মেবি হেলথ ওয়ার্ল্ড এমনি কিছু হসপিটাল মনে হয়, আমাদের জানা নেই, যতটা সম্ভব আমি আপনাকে বলে দিলাম। তা এখন ও যে অবস্থা কন্ডিশনে আছে, সেই কন্ডিশন থেকে মানে আমরা ভগবানকে কৃপা করবো যেন ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। কিন্তু ইনকেস যদি ওর কিছু ঘটে যায়, ফ্যাক্টরিতে যেহেতু কাজ করতে করতে হয়েছে, তাই আমরা চাইবো সবসময় যে ও সুস্থ থাকুক। কিন্তু যদি কিছু হয়ে যায়, এর যে ক্ষতিপূরণ, এই ক্ষতিপূরণটা কে দেবে? ফ্যাক্টরি পক্ষ আমাদের সঙ্গে এখনও কথা বলেনি, এখন নেগোসিয়েশনে আমাদের সাথে আসেনি। আমরা এখানে লোকজন এসেছি কারণ কিসের জন্য? আমরা এখানে ঝামেলাঝাটি করতে আসিনি, আমরা জাস্ট ওর যে ক্ষতিপূরণ, ওর যে এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, ওর যে ফ্যামিলি অ্যাক্টিভ ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ওর পয়সা দিয়ে চলতো, সেটা তো ভেসে গেল। এই যে ভেসে যাওয়া, এই জিনিসগুলোকে আনা, এইগুলোকে কে করবে? এইগুলোকে এই যে ওর দায়িত্বটা কে নেবে? তো আজ যদি কিছু হয়ে যায়, ভগবান করে বেঁচে থাকলে ওর, আমরা চাইছি ওর ডিমান্ড যে যেগুলো ক্ষতিপূরণ লাগে ফ্যাক্টরি থেকে দেওয়া হয়, সেইগুলো ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। কি ফ্যাক্টরির নাম? সুপার। ওই সকালবেলা রেগুলার যেমন ডিউটি আছে, ডিউটি আসছিল, ডিউটি আসার পথে প্ল্যান্টার ভিতরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। মানে হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট করছি, তারপর হসপিটালাইজ করা হয়, হসপিটালাইজ করার পর ওই 11টার সময় মারা যায়। আপনাদের কি কি দাবি ছিল? আমাদের দাবি ছিল আমাদের ওই পরিবারের কিছু ভরণ পোষণ, একটু চাকরির দাবি। কি এখানকার যে কোম্পানি পক্ষ কি মেনেছে? কোম্পানি পক্ষপত্র মেনেছে। কি আপনার কি দিয়েছে? দিয়েছে বলতে ওই কিছু ওই পার্কিংয়ের জন্য কিছু দিয়েছে, আর কিছু ওই যেটা আমাদের দাবি ছিল ফ্যামিলির মেটারের জন্য। কি দাবি ছিল ওটা? বলতে কিছু টাকার মতো। কত টাকা? যেটা দিয়েছে 5 লাখ দিয়েছে। হ্যাঁ, 5 কোটি দিয়েছে। 5 কোটি। যিনি মারা গেছেন ওনার নাম কি? ওর নাম রতি কোড়া। বয়স কত? বয়স ওই 45। কোথায় থাকতেন? আকলপুর। আপনার নাম? আমার নাম বুঝেন তির্কি। আপনি কে হন? আমি আমার মাসি হতো। पश्चिम बर्धमान
तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से जिला सदर सैयद अफरोज और हीरापुर ब्लॉक के सदर SM जकी की क़यादत में और मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की सहायता से आज फ्री ऑर्थोपेडिक और जनरल हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद करीम डंगाल में किया गया। सैकड़ों लोग इस कैंप से मुस्तफिज हुए। डॉक्टर देवाशीष सरकार, अंजना शर्मा, विनोद यादव, हैदर मंडल, उत्पल सेन खासतौर से मौजूद थे। बहुत ही हमारे चर्चित तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद अफरोज साहब। मैं प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अफरोज साहब से गुजारिश करूंगा कि सैयद मोहम्मद अफरोज साहब श्री अंजना शर्मा जो हमारी हॉस्पिटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बहुत ही सीनियर काउंसलर MMIC मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हमारी हुई। ये लोग विधानसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने श्री माईभरत साहब का हाथ पकड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उससे पहले ये भाजपा की पार्टी करते थे, भारतीय जनता पार्टी में से। लेकिन जब यकीन मानिए जब इनको हम लोग देखते थे, जिनका नाम मैं बता दूं, डॉक्टर देवाशीष सरकार साहब, इनका परिचय भी मैं आप लोगों से करवा दूं। आप लोग एक मरतबा एक बहुत अच्छा सा ताली के लिए दीजिए। ये शाहरासनपुर के बहुत बड़े डेंटल सर्जन हैं और इनकी वाइफ भी डॉक्टर देवाशीष सरकार जो आई सर्जन है, सरकारी हॉस्पिटल में बाबरा मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर भी है और इनकी भाभी ये सारी की पूरा घराना बहुत ही क्वालिफाइड पढ़ा लिखा। टीवी में, फेसबुक पे या अखबार में जब देखते थे तो यकीन मानिए हम लोगों को इनके ऊपर में बहुत गुस्सा आता था। बहुत इनको देखकर हम लोग गुस्सा होते थे कि पता नहीं डॉक्टर साहब को कौन सा ऐसा जड़ी बीजेपी वालों ने खिला दिया है कि इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद एक ऐसी पार्टी के साथ है कि जो इस देश की बहुत बड़ी जो है माइनॉरिटी 30% जिसकी आबादी है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी, जिस पार्टी की बुनियाद उसकी नफरत की बुनियाद पे है, मुसलमानों से नफरत की मामले में एक लगाएंगे जहाँ डॉक्टर आएंगे ज्यादा। मेरे खिड़की लगी खान साहब ने सीधे ही दोनों रूम लोगों की सहूलियत के लिए फराहम कर दिया। दोबारा मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी वजीर आला बनने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने जो आवाम के लिए तिब्बी मुफ्त सहूलत फराहम किया है, तहरीर से वजीर आला मगरबी बंगाल को शुक्रिया अदा करते हैं। अमीर के पास तो काफी पैसे हैं, वो इलाज करा रहे थे, लेकिन महली के मर्द में मुबतला होने वाले गरीब आवाम का निशान थे और उन्हें कोई भी आशा नजर नहीं आ रहा था। फ्री में 5 लाख का ये इलाज का ऐलान करके ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम ये कहेंगे जिस तरीके से हर शोबे में तरक्की हुई है, मुस्लिम बंगाल के ममता बनर्जी के साथ जो लोग लीडर हैं उन्हें चाहिए कि काम को तेजी के साथ आप आगे बढ़ाएं। क्या मगरबी बंगाल में जो तरक्याती काम हो रहे हैं पूरे मुल्क के इस पर नजर है और यहाँ की तरक्की से पूरे मुल्क का तरक्की होगा। इसलिए ये साफ दिखती है कि तृणमूल कांग्रेस केवल चुनाव के आगे नहीं दिखती है, चुनाव के बाद भी। आज का समाज में जो व्यवस्था चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस को आप पश्चिम बंगाल के लोग खास करके किसी सियासती दल के रूप में नहीं देखते हैं, अपने परिवार का एक हिस्सा सोचते हैं। क्योंकि पहले LIC में एक विज्ञापन आता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन अब वो कार्य तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मुफ्त में डिलीवरी सरकारी सदर अस्पताल में, उसके बाद कन्याश्री, गोदी घरा, कौन से सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक योजना नहीं है लोगों की सहायता करने के लिए। देखिए स्वास्थ्य साथी अपने आप में एक ऐसा स्कीम है, हेल्थ स्कीम है जिसमें की सारे सुविधा उपलब्ध है। फिर भी सोचिए आज तृणमूल कांग्रेस का मोर्चा से ये सेल लगाए गए हैं, तो इससे प्रमाण होता है
कि तृणमूल कांग्रेस माइक्रो कैंप्स के जरिए हर एक घर को, हर एक परिवार को छूना चाहती है, वो सुविधाएं मुहैया करना चाहती है जो सुविधाएं शायद नहीं मिल पाएगी उन लोगों को। आज हम एक ऐसे समाज व्यवस्था के अंदर चल रहे हैं जहाँ सोचिए दिल्ली की सरकार जात पात की राजनीति में व्यस्त है, जहाँ पे राम की दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है वो लोग कई बार भूल जाते हैं कि राम के साथ और कई जनों का नाम लिया जाता है सरवरी का, प्रतीक्षा का। तो जात पात अगर राम नहीं करते थे जिस ढंग से वो लोग आज जात पात कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में खड़ी होकर अकेले रूप से हमारे मुख्यमंत्री उस चीज के खिलाफ, उस धारा के खिलाफ आवाज उठा रही है और समाज के लिए काम कर रही है। कलकत्ता के लोगों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस ढंग से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है, हमारे दीदी को, हमारे पार्टी को आशीर्वाद किया है। यही चीज मैं बोलूंगा कि पूरे भारत आने वाले समय में, आज अगर भारत में कोई चेहरा है तो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, जो बीजेपी का सामना कर पाए, एक विपक्ष सरकार के रूप में देश में सरकार का गठन कर पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट लेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल।
आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आज आप फिर आए हैं थाना आज आए हैं हम लोग कि दिलीप अग्रवाल जी का जो घर जल गया है उनके लिए FIR करने के लिए आए हैं। ये दिलीप जी हैं सामने में, जिनका बोलिए बोलिए। और 7 बजे से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और बड़ा बाबू से भेंट करके FIR देने का कोशिश कर रहे थे। तब तक वो बैठाए थे, ये अकेले थे, इनके साथ 2-4 जन थे, तब तक FIR नहीं लिए। इनके बाद हम ये फ़ोन किए, हम लोग सभी आए, तभी FIR रिसीव कर लिए हैं। बोले सुबह आके 10 बजे सिग्नेचर करके FIR कॉपी देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ एकत्र हुए हैं, जमा हुए हैं। पहले क्यों नहीं ले रहे थे पुलिस FIR? अब मालूम नहीं है क्यों नहीं ले रहे थे, इस बात को हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ 7 बजे से ही बैठे हुए हैं। जब नहीं लेने से तब हम लोग इकट्ठा होना पड़ा, नहीं लेते तभी हम लोग पूरा सुगम पार्क उठकर यहीं पर आकर धरना दे देते। आपका नाम परिचय? अनिल सिंह, जनरल सेक्रेटरी सुगम पार्क। আমাদের এখানে সুগম পার্কে আচানক যে আগুনটা লেগে গেছিল সেই ব্যাপারে আমরা সুগম অথরিটির কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আমাদের কি প্রিকশন আপনি নিয়েছেন। ও সুগম পার্ক আগুনটা যে লেগে গেছে আজ পর্যন্ত সুগম অথরিটি আমাদের সাথে কোনো কথাও বলতে চায়নি বা কথা বলার চেষ্টাও করেনি, উল্টো উড়ো উড়ো কথা বলে আমাদের নামে নানা রকমের ব্লেম দিচ্ছে। আমরা সুগমে এসেছি, বহুত ভরসা করে এসেছি যে কমিটি আমাদেরকে সাহায্য করবে, কিন্তু এই যে আমাদের সুগম অথরিটি আমাদেরকে মানে কোনো রকমের সেফটি দেয়নি। আপনি মানে এই যে অত বড় বড় বিল্ডিং বানিয়ে দিয়েছে, বাই চান্স যদি আমার 3 তলা 4 তলা 5 তলায় যদি কিছু হয়ে যায় কিভাবে আমরা রেস্কিউ করব? আমরা কোনো রকমের ওদের থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছি না। আমরা এসেছিলাম আমাদের যে এই অগ্নিকাণ্ডটা হয়েছে তার ব্যাপারে একটা FIR দিতে এসেছিলাম, সেই সুগম হোমসের খেলাপে। কিন্তু আমরা FIR দিতে এসেছি মানে যিনি ভিকটিম মানে দিলীপ আগরওয়াল, উনি 7টার থেকে এখানে বসে আছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের FIR নেওয়া হয়নি। তখন আমরা সব সুগমবাসী একত্রিত হয়ে এখানে এলাম, তখন আমাদের FIRটা জমা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওতে স্ট্যাম্প বা নাম্বার পড়েনি। সেটা আমাদেরকে ডাকা হয়েছে, কাল সকালে 10টার সময় দেওয়া হবে। আমরা আবার কাল 10টার সময় আসবো, দেখি কি রেজাল্ট পাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণকেশব রায়, সুগম রেসিডেন্ট, A10 4B। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।